वेल हेलो स्टूडेंट्स। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यार बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ यस यू कैन, ऐसे ही मैंने लिख दिया। मतलब तो लेक्चर स्टार्ट करना है तो मैंने लिख दिया यस यू कैन। लॉकडाउन पीरियड गोइंग ऑन, तो घर पे बैठे हो, मतलब बोर लगे कभी कभी यार, दोस्तों को नहीं देखा इतना दिन हो गया, तो पढ़ाई भी उतना ज़्यादा मूड नहीं बनेगा, क्योंकि मतलब पढ़ाई करते रहना चाहिए। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में तो टाइम टाइम पीरियड वेरी लिमिटेड, तो व्हेन यू आर फीलिंग बोर, मतलब बोर लग रहा है कि मतलब क्या करे, कुछ करने को, देन रिमेंबर वन थिंग, यस यू कैन। whatever the problem comes in your way, you can tackle all this and you can achieve. तो keep yourself motivated। मतलब बाहर वाले intrinsic motivations are of two types, intrinsic and extrinsic। बाहर वाली चीज़ों से जब मोटिवेट जब होते हैं उसको extrinsic बोलते हैं, और खुद अंदर से अंदर मतलब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अंदर वाला मोटिवेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। खुद से आना चाहिए, मुझे कुछ करना है। मतलब डंडे की मत देर, आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई क्लास आई यूज्ड टू से देयर आर टू थिंग, देयर आर टू वेल एजुकेटेड एंड व्हाट वेल यू कैन, मतलब वेल ट्रेन्ड। मतलब डंडे के डर से मतलब वो हाथी भी डांस करने लग जाता है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड वेल ट्रेन्ड। बट वेल एजुकेटेड मीन्स व्हाट, दिस इज डिफरेंट वर्ड। तो मेक योरसेल्फ व्हाट मोटिवेटेड एंड keep what going, keep going. And when you are feeling down, just remember one thing, yes I can, yes I can. Say yourself, yes I can do this, yes I can achieve this. तो कंटिन्यू करते रहो, ओके। लेट्स बिगिन। तो लास्ट लेक्चर we have discussed about concept of lens, we have discussed about type of lens, we have discussed about rules for image formation, different terms regarding what lens, then we have discussed about formation of image in concave lens. Today we'll start with our lecture. What? Today we'll start our lecture with what? Formation of image. Formation of image. Formation of image. Formation of image in concave. In what? In last we have discussed about convex lens. How image forms, we will discuss about concave lens. Now this is very simple. In case of concave lens, there are two cases. Two cases, like the cases of convex mirror, same happens in case of concave lens. There are only two cases for image formation. I'm doing it first, okay? This things are very simple. So case number one, I'm taking a convex lens, case number one, and I'm also taking a convex lens. These are two cases. We know that in case of convex lens, both the surfaces are whatever convex. So this is our principal axis, this is our optical, you can say what is this? Optical center. In case of this also, this is our optical center. So this is our F1, so this is our F2, 2F1, sorry, 2F1. Here will be our F2, so this is one of our 2F2. This is our F1, this is our 2F1. Here is our F2, here is our 2F2. At first case क्या होता है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? इंफिनिटी में होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? इंफिनिटी पे होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? इंफिनिटी में होता है। फर्स्ट केस। एंड सेकंड केस, इन बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे होता है? इन बिटवीन इंफिनिटी पे कहीं इन बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, किसी इंफिनिटी या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो क्या होता है? अगर सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हम लोग का टेकिंग डिफरेंट कलर पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इंफिनिटी पे, तो टेक टू रेज, we will take only two rays, because for red diagram, two diagrams we will taking, because to keep the diagram simple. As the concave lens what? Diverge the ray, so they will diverge, but they will appear to meet at a point. They will appear coming from a point what? Front of the lens. So when object at infinity, object कहाँ पे है? Object कहाँ पे? This is our concave. Name the lens MN. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटी, इमेज कहाँ पे हो रहा है? इमेज एट F1, एट व्हाट? प्रिंसिपल फोकस। इमेज एट व्हाट? F1 कहाँ पे है? लेंस के सामने है। लेंस के सामने है। इमेज क्या हो रहा है? एक्चुअली लाइट रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर अपियरिंग टू मीट। तो नेचर क्या हो जाएगा? इफ देयर नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल। क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा। एंड इसका साइज क्या हो जाएगा? साइज
साइज वेरी स्मॉल साइज क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल, डॉट शेप वेरी वेरी स्मॉल साइज हो जाएगा, एंड इसका ऑलमोस्ट डॉट लाइक दिस, सी दिस इज अ पॉइंट लाइक ओनली स्मॉल डॉट लाइक इमेज विल फॉर्म। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एट f1, एट व्हाट f1। इसका नेचर क्या हो रहा है, नेचर वर्चुअल, नेचर क्या हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है, एज द लाइट रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, दे आर अपियरिंग टू मीट, एंड इसका मतलब कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा, लाइट रेज फॉर्मिंग लेंस के सामने हो रहा है, एंड साइज क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल। जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट और नोट डाउन। व्हेयर इज पेन? Finish, then let's start the second one. ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन बिटवीन इन्फिनिटी एट ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर या इन्फिनिटी के बीच में, तो हम टेक, आई कैन टेक एनीवेयर, आई एम टेकिंग हियर, ओके लेट्स टेक एनीवेयर, लेट्स टेक बियॉन्ड व्हाट f1। तो ऑब्जेक्ट, नेम दैट ऑब्जेक्ट ab, तो ab इन्फिनिटी का ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो एनीवेयर यू कैन टेक, तो ए रे पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्ज, दिस विल अपीयर इट टू मीट विद ए पॉइंट, ओके। अनदर रे यू कैन टेक व्हाट, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे जाएगा, मतलब दे विल डाइवर्ज, तो स्ट्रेट इट विल व्हाट, ऐसे जैसे जाएगा ऐसे ही निकल जाएगा, एज वी नो दैट इफ लाइट फॉलिंग ऑन द ऑप्टिकल सेंटर इट विल ट्रेवल स्ट्रेट। तो वेयर लाइट रेज आर मीटिंग, दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट फ्रंट ऑफ द लेंस। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड व्हाट, बिटवीन इन्फिनिटी एट ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर है और इन्फिनिटी के बीच में है, तो इमेज कहाँ पे हो रहा है, इमेज कहाँ पे हो रहा है, इन बिटवीन एफ एंड ओ, इन बिटवीन एफ एंड ओ, इन इमेज कहाँ पे हो रहा है, इन बिटवीन फोकस एंड व्हाट, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो रहा है। इसका नेचर क्या है, लाइट इज नॉट एक्चुअली मीटिंग, तो इमेज का नेचर क्या हो रहा है, नेचर हो रहा है वर्चुअल, नेचर क्या हो रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो मतलब बस जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे हम लोग क्या है, इमेज है, तो ए बी एट सेम एज ऑब्जेक्ट, ऐसा ही पेन है तो इमेज भी ऐसा ही निकलेगा, इरेक्ट इन्वर्ट नहीं होगा, जैसा पेन है वैसे इमेज निकलेगा। एंड साइज क्या है, साइज क्या है, स्मॉलर, साइज क्या है, स्मॉलर। तो क्या मालूम पड़ा हम लोगों को इन दो डायग्राम से, तो इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस इमेज का नेचर हमेशा क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है, हमेशा क्या होता है, वर्चुअल। व्हाई वर्चुअल इरेक्ट, बिकॉज इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस लाइट रे नेवर मीट ईच अदर, दे अपीयर्स टू मीट ईच अदर, एंड साइज क्या होता है, हमेशा छोटा ही रहता है, ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहता है, कभी कभी डॉट लाइक हो जाता है, कभी कभी व्हाट क्या होता है, हमेशा छोटा रहता है, कभी डॉट शेप भी हो जाता है, इतना छोटा भी हो सकता है। तो दिस आर द image formation in case of ray diagram for what, concave lens। फर्स्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, एंड सेकंड केस ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा तो इमेज कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, नेचर क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट, साइज क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल डॉट शेप। सेकंड केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो रहा है, एंड नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड द इरेक्ट। होप इट्स क्लियर। यू फिनिश, देन जस्ट टेक मेक ए नोट। यू फिनिश, yeah, okay, let's start the next topic, and the next topic is, can you guess what, sign convention. So as I have told, in case of mirror also, the sign conventions are very very important for solving numerical. Without sign convention you cannot proceed what, you cannot proceed with the numerical. Sign conventions are very very important, and in case of lens also sign conventions are almost exactly same as mirror. In case of mirror, what we have discussed, if something is what in the same direction of incident direction की ओर हो रहा है तो उनको हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट उसका डायरेक्शन है तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव मानते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव मानते हैं। एंड द हमेशा मतलब इनकेस ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड पे रहता है, लेंस के सामने रहता है, तो लेंस सामने वाला साइड हम लोग का क्या होता है, लेफ्ट नेगेटिव होता है। तो we know that, but in case of mirror one thing is different. In case of mirror, all the distance we say, in case I'm taking a mirror what diagram, we used to take the distances from the what, pole। हम लोग पोल से डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट का दूरी कितने दूरी पे ऑब्जेक्ट है
तो उस दूरी को कहाँ से हम लोग लेते हैं, पोल से लेते हैं. बट इन केस ऑफ लेंस दिस इज द डिफरेंस, वी विल टेक द एवरी डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. इन केस ऑफ लेंस दूरियों को ऑप्टिकल सेंटर से लिया जाता है, बट इन केस ऑफ मिरर दूरियों को पोल से लिया जाता है. मतलब किसी ऑब्जेक्ट की दूरी 10 सेंटीमीटर है, दैट मींस व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल इज 10 सेंटीमीटर. बट हियर इन केस ऑफ लेंस इफ वी से ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो वी विल से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर. होप इट्स क्लियर. इन केस ऑफ they may ask what do you understand by an object distance of object is 10 centimeter from mirror and distance of 10 centimeter from lens. So if they are telling for the mirror, so the distance between the pole and the object. In case of lens it is distance between the optical center and the object. Hope it's clear. So every distances in case of mirror is measured from pole. In case of lens every distance is measured from what, optical center. किसी भी रे, अगर किसी भी चीज इंसिडेंट रे की मतलब सेम डायरेक्शन पे, तो उसको हम लोग मानेंगे पॉजिटिव. अगर इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको मानेंगे नेगेटिव. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले को मानेंगे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले को मानेंगे हम लोग नेगेटिव. तो लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द साइन कन्वेंशंस फॉर कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है. कॉन्वेक्स के लिए साइन कन्वेंशन कैसा रहता है, एंड कॉन्केव के लिए क्या कैसा रहता है, कॉन्केव लेंस के लिए कैसा रहता है, एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसा रहता है. फर्स्ट वी विल एज इन केस ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट की दूरी को हम लोग मानते हैं u, एंड द इमेज की दूरी को हम लोग मानते हैं क्या, we will denote the image distance by what, v. We will denote the object distance by what, u. We will denote the focal length as what, f. Okay, small f. So here also in case of lens these things are same. Image distance v, object distance u, focal length is what, or same as what, f. Okay, so let's discuss what u कैसा रहेगा. Okay, in case of बोथ द लेंसेज v कैसा रहेगा, v रियल हुआ तो कैसा रहेगा, वर्चुअल हुआ तो कैसा रहेगा. देन वी विल डिस्कस अबाउट हाइट कैसा रहेगा, हाइट दोनों का हाइट कैसा रहता है, एज डैश क्या होता है, रियल के लिए क्या होता है, वर्चुअल के लिए क्या होता है, हम लोग दोनों मानेंगे. देन आवर फोकल लेंथ क्या होता है, विल डिस्कस हियर. और यू कैसा रहेगा, v. ये इन केस ऑफ कॉन्केव हम लोग कभी भी इमेज रियल नहीं हो रहा है, तो इमेज हमेशा वर्चुअल है. इमेज वर्चुअल है तो कैसा रहेगा, हाइट कैसा रहेगा, एज डैश कैसा रहेगा, हाइट ऑफ द इमेज कैसा रहेगा, एंड आवर एफ कैसा रहेगा. तो लेट्स बिगिन. ऑब्जेक्ट हमेशा कौन, फॉर एग्जांपल आई एम ए कॉन्वेक्स लेंस, जस्ट इमेजिन आई एम ए कॉन्वेक्स लेंस. तो एन ऑब्जेक्ट हमेशा मेरे सामने रहेगा, एंड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे विल ट्रेवल. तो एज द इंसिडेंट विल ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट ये ऐसे इस डायरेक्शन में रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट. हियर दिस इज एन ऑब्जेक्ट, एंड उसी ऑब्जेक्ट से रे निकल के ऐसे जा रहा है, आई मीन लेंस उसी ऑब्जेक्ट से निकल के फॉलोइंग ऑन द लेंस. तो इंसिडेंट ट्रेवलिंग दिस वे, बट ऑब्जेक्ट इज ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सा डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है. फॉर दैट रीजन इमेज हमेशा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव. बोथ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, इन केस ऑफ कॉन्केव हमेशा u की दूरी को हम लोग क्या मान के चलेंगे, उसको नेगेटिव मान के चलेंगे. अदर वे यू कैन आल्सो जस्ट रिमेंबर इन दिस वे आल्सो. देन ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रहता है, लेफ्ट पे रहता है. फॉर दैट रीजन ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं. नाउ कमिंग टू v, मतलब इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स कैसा रहता है. फर्स्ट रियल, we have seen in last lecture we have seen that हमेशा in case of convex क्या था, इमेज कहाँ पे होता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम एन कॉन्वेक्स लेंस, तो इमेज क्या हो जाएगा, हमेशा लेंस के उस पार होता है. मतलब इफ दिस इज द लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लेंस के पीछे हो रहा है, मतलब ऑन द राइट साइड. सभी इमेज कहाँ पे हो रहा है, लेंस के पीछे हो रहा है. एंड लेंस के पीछे सामने अगर नेगेटिव हुआ तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा. तो इफ द लाइट रेज रियल इमिटिंग, हम लोगों ने देखा मतलब लाइट रेज क्या हो रहा है, मिरर लेंस के पीछे मिल रहा है, मतलब रियल इमिटिंग. तो अगर रियल हो रहा है तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, पॉजिटिव मानेंगे. क्या मानेंगे हम लोग, पॉजिटिव मानेंगे. अगर वर्चुअल, देयर इज वन केस व्हेन इमेज क्या हो जाता है, लेंस के सामने आ जाता है, एंड लेंस के सामने हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे. तो इफ इट इज वर्चुअल देन इट इज व्हाटएवर नेगेटिव. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मिरर के लिए थोड़ा डिफरेंट है. अगर इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज रियल, इफ इट इज पॉजिटिव देन हम लोग क्या मानेंगे, उसको वर्चुअल लेते हैं. बट इन केस ऑफ लेंस के लिए थोड़ा डिफरेंट है. इफ इट इज रियल देन इट इज व्हाट, प्लस. इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज व्हाटएवर वर्चुअल. इमेज के लिए अगर इफ यू आर फाइंडिंग फॉर एग्जांपल v इक्वल 10 सेंटीमीटर, इफ इट इज प्लस देन इट इज रियल, इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज व्हाट, वर्चुअल. हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा. ओके. हाइट, ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं. पॉजिटिव लेते हैं, सो हाइट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा.
दोनों लेंस के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस भी हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव, एज इमेज इज व्हाट, हमेशा क्या इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज होता है। जस्ट वी हैव सीन दैट द इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, फॉर दिस इज द लेंस, वो ऑब्जेक्ट हमेशा इमेज कहाँ पे, लेंस के सामने होता है, एंड फ्रंट ऑफ द लेंस हम लोग का नेगेटिव है, इसी लिहाज से हम लोग क्या मानेंगे, इसको नेगेटिव मान के चलेंगे। अदर वे ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट से निकल के जा रहा है तो रे हमेशा इंसिडेंट रे के ऑपोजिट रहता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या मानते चलेंगे, नेगेटिव मान के चलेंगे। नाउ कमिंग टू एज रेस, हाइट ऑफ द इमेज। नाउ इन केस ऑफ रियल, हमेशा वी हैव सीन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऐसा रहता है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहता है। इफ इट इज रियल तो उसको क्या मान के चलेंगे, नेगेटिव मान के चलेंगे। व्हाई इट इज नेगेटिव, because it is below the principal axis, below the image is forming below the principal axis. Question they may ask like this, if the height of an object is negative 3 centimeter, what does it mean? This means that the height of the object is 3 centimeter and it is forming below the principal axis. Negative वाला sign indicating that it is forming below the principal axis and it is real, and it is real. And अगर virtual हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मान के चलेंगे। In case of what happens, in case of concave edge rays तो हमेशा क्या रहता है, मतलब लेंस के सामने रहता है, लेंस के ऊपर रहता है, तो इमेज को थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, तो उसको क्या मान के चलेंगे, पॉजिटिव मान के चलेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोकल लेंथ, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स वी हैव सीन इमेज, ऐसे रे मतलब लाइट, पैरेलल लाइट रे फॉलिंग ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट बिहाइंड द लेंस के पीछे दे आर कन्वर्जिंग, तो एज द बिहाइंड द लेंस इज पॉजिटिव, तो एफ क्या रहेगा, हम लोग का पॉजिटिव रहेगा। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस हम लोग का एफ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड कॉन्केव लेंस के लिए एफ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। They may ask like this, if the focal length is minus 2 centimeter, what kind of lens it is? If the focal length is negative sign, you are getting to the lens is whatever, हमेशा क्या रहेगा, कॉन्केव रहेगा, मान के चलना पड़ेगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साइन कन्वेंशन, यू कैन मेक ए नोट, बिकॉज साइन कन्वेंशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल। विदाउट साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जस्ट डू वन थिंग, पॉज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज प्लस, व्हाई दिस इज माइनस, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन अगेन। अब इतना समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन के बारे में जानना पड़ेगा हम लोग को थोड़ा बहुत, बिकॉज न्यूमेरिकल के लिए वही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, अगर लेट्स नो अबाउट मैग्निफिकेशन, स्पेलिंग मैग्निफिकेशन, उसको हम मैग्निफिकेशन हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर व्हाट, एम से डिनोट करते हैं। अब मैग्निफिकेशन इज सेम एज व्हाट, एज मिरर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्निफिकेशन क्या होता है, सेम मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस ऑल्सो। मतलब इमेज, वी नो दैट, वी हैव सीन दैट व्हाट इन केस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ लेंस, कभी कभी ऑब्जेक्ट से इमेज बहुत बड़ा हो रहा है, कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा हो रहा है, कभी ऑब्जेक्ट एंड इमेज व्हाट रिमेनिंग सेम, कभी कभी हो रहा है। तो हाउ मच इमेज इज एनलार्जिंग, हाउ मच इमेज इज गेटिंग व्हाट स्मॉलिंग डाउन, मतलब कैसे कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है, उसी को हम लोग जानेंगे बाय यूजिंग व्हाट, मैग्निफिकेशन। एज कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट, इमेज कितना बड़ा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैग्निफिकेशन। एंड मैग्निफिकेशन इज there are two laws by which we can find out the magnification. Magnification is the ratio of height of the image by height of the object. Height of the image by height of the object. It is also equal to the distance of the image by distance of the object. In case of mirror, there was a negative sign, negative v by u. In case of lens, it is m equal to h by h equal to v by u. याद कर रखना, संभाल के रखना। मतलब in case of lens, it is h by h equal to v by u. You can, if the question come, what is magnification? Directly you can answer like magnification is the ratio of height of image by height of object, or it is also the ratio of what, distance of image by distance of object. Now magnification for concave के लिए कैसा रहता है, concave के लिए convex के लिए कैसा रहता है, एंड concave के लिए कैसा रहता है, लेट्स नो। अभी कॉन्वेक्स में क्या हो जाता है, कभी कभी इमेज क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, कभी ऑब्जेक्ट एंड द इमेज रिमेन्स व्हाट सेम, कभी कभी इमेज व्हाट गेटिंग एनलार्जिंग। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स इमेज क्या हो जाएगा, क्या समटाइम इक्वल टू 1, समटाइम क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा, कभी कभी क्या हो जाएगा इक्वल टू 1। नेम ए लेंस व्हिच कैन फॉर्म +1 name a lens which can form magnification equal to 1. Only convex lens can form magnification equal to 1, because concave lens can never form, because in concave में हमेशा क्या होता है, इमेज छोटा होता है,
लेस देन 1, इक्वल टू 1, एंड इट कैन बी व्हाट ग्रेटर देन 1। 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1। इमेज क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ओके, देन कमिंग टू कॉनकेव, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, तो इट इज हमेशा क्या लेस देन 1, हमेशा क्या रहता है, लेस देन 1 रहता है, बिकॉज इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस इमेज कैन नेवर बी गेट व्हाट एनलर्ज, इमेज कभी बड़ा नहीं हो सकता है ऑब्जेक्ट से, दैट्स व्हाई इनका मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहता है, 1 से छोटा रहता है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मैग्निफिकेशन कभी कभी ऑब्जेक्ट से छोटा भी होता है, दैट्स व्हाई लेस देन 1। कभी कभी मैग्निफिकेशन इमेज ऑब्जेक्ट सेम, इमेज क्या ऑब्जेक्ट सेम ही आता है, दैट्स व्हाई इक्वल टू 1 हो सकता है मैग्निफिकेशन। कभी कभी इमेज क्या बहुत बड़ा हो, दैट्स व्हाई इट्स कैन बी ग्रेटर देन 1। जस्ट टेक अ नोट। There are two things you have to remember also. If the magnification कभी कभी अगर हम लोगों को if the magnification you are getting plus, तो इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का, वर्चुअल हो जाएगा। और इफ यू आर गेटिंग मैग्निफिकेशन इक्वल टू माने व्हाट नेगेटिव, देन यू आर गेट इमेज हमेशा क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर इन केस ऑफ इफ द मैग्निफिकेशन इज व्हाट नेगेटिव, देन इट इज व्हाट रियल एंड द इन्वर्टेड, हमेशा क्या रहता है, रियल रहता है। अगर मैग्निफिकेशन इज इक्वल +1, मैग्निफिकेशन इज व्हाट +1 प्लस मिल गया, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, वर्चुअल मानेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या मान सकते हैं, इन केस ऑफ कॉनकेव हमेशा मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, प्लस रहेगा, बिकॉज इन केस ऑफ कॉनकेव हमेशा क्या होता है, इमेज नेचर इज व्हाट वर्चुअल, हमेशा इमेज छोटा होता है, लेंस के सामने होता है, दैट इज व्हाई नेचर क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो इन केस ऑफ कॉनकेव मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा, मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो इफ यू आर इन केस ऑफ इफ बोथ, फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन इज व्हाट +0.5 and magnification what +1.3, which one is convex, which one is concave? Remember one thing, in concave lens can never form magnification greater than 1, तो ये वाला क्या हो जाएगा, concave, and this one क्या हो जाएगा हम लोग का convex लेंस फॉर्म मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, उसका मैग्निफिकेशन 1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एज इमेज इज व्हाट मच एनलार्जिंग देन द ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इन केस ऑफ कॉनकेव मैग्निफिकेशन प्लस रहेगा बट 1 से छोटा रहेगा। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मैग्निफिकेशन प्लस हो सकता है बट हमेशा क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा होगा। और इफ यू आर फाइंडिंग मैग्निफिकेशन -2, then if you are finding any negative, then the lens हमेशा क्या रहेगा, convex रहेगा, because concave can never form negative magnification, because concave can never form, why concave lens can never form negative magnification, because concave lens can never form any kind of what real images, that is why they can never form any kind of magnification, for that reason magnification का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ऐसा कोई केस नहीं आ सकता, because concave lens can never form any kind of real images, for that reason इनका magnification भी कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। एंड हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, छोटा होता है, दैट्स व्हाई इनका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, प्लस रहता है फॉर वर्चुअल रीजन, एंड हमेशा छोटा होता है, फॉर दैट रीजन इज क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट कॉन्वेक्स कैन बी ग्रेटर देन 1, एंड 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से इक्वल हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। अंडर व्हिच कंडीशन मैग्निफिकेशन बिकम्स इक्वल टू 1 इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, व्हेन द ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट 2f1 पे होता है, इमेज भी कहाँ पे होता है, 2f2 पे होता है। on that case image height is equal to object height, and only on that condition हम लोग क्या मान सकते हैं, इसका मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 हो रहा है। होप इट्स क्लियर, जितना अच्छा हो सकता है मैंने एक्सप्लेन किया। फ्रॉम मैग्निफिकेशन क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्निफिकेशन इज दिस बाय h इक्वल टू v बाई u, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस हो सकता है, नेगेटिव फोर्स माइनस भी हो सकता है। प्लस हमेशा किसके लिए होता है, वर्चुअल के लिए होता है, एंड नेगेटिव किसके लिए होता है, रियल के लिए होता है। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स प्लस आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, बिकॉज it can form real image as well as virtual image, but concave can never form negative, it forms always positive
किसके लिए? बिकॉज इट कैन नेवर फॉर्म एनी काइंड ऑफ रियल इमेजेस एंड कॉन्वेक्स कैन फॉर्म रियल, कैन फॉर्म वर्चुअल, बट इफ इट इज फॉर्मिंग वर्चुअल इमेज तो हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है. फॉर दैट रीजन मैग्निफिकेशन प्लस, इफ यू आर गेटिंग प्लस, बोथ आर प्लस प्लस, निकाल क्वेश्चन पूछ ले तो क्यों, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा रियल, कौन सा कॉन्केव, कौन सा कॉन्वेक्स, तो इजीली रिमेंबर. अगर यू आर गेटिंग लेस देन 1 तो वो कॉन्केव हो जाएगा. इफ यू आर गेटिंग मोर देन 1 तो क्या रहेगा हम लोग का? कॉन्वेक्स रहेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड बिफोर व्हाट मैं थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पर उससे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों हो रहा है ये सब. ओके, इफ क्लियर देन जस्ट मेक ए शॉर्ट नोट. And this, if this finish, then let's start a new topic. And a new topic मतलब ये chapter का last topic है. And tomorrow we will solve some numerical. And after that chapter will end. This is 9th lecture. Tomorrow will be 10th lecture. After this chapter will end. Okay. And the new topic is what? Power of lens. Power of lens. अभी देखो power of lens. पावर मतलब एबिलिटी. अभी देखो लेंस का एबिलिटी क्या है, मतलब फॉर इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, किसी भी लाइट रे, इफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे इज फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट ऑफ रे इज फॉलिंग, तो दे विल डू व्हाट, देयर नेचर क्या, उनका नेचर क्या होता है, दे विल कन्वर्ज द लाइट रेज. उनके नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग नेचर. उन लाइट रेज, कितना भी लाइट रेज इफ यू आर फॉलिंग पैरेलल विद द कॉन्वेक्स, तो हमेशा वो लोग क्या करेंगे, उसको उन लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पे मिला देंगे. ओके, दिस इज देयर नेचर. देयर नेचर इज कन्वर्जिंग. अगर लाइट रेज फॉलिंग ऑन द डाइवर्ट, तो वो देन दे विल डू व्हाट, दे विल डाइवर्ट द लाइट रेज. नाउ द क्वेश्चन कम्स, मतलब देयर इज ए लेंस, मतलब देयर इज ए लेंस, इसका नेचर क्या होता है, मतलब इज दिस वन इज कन्वर्जिंग मोर. फॉर एग्जाम्पल इसका पावर ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ए लेंस, मोटा वाला लेंस आई एम टेकिंग. अभी इसका क्या हो रहा है, दे आर मीटिंग क्लोजर, मीटिंग व्हाट क्लोजर, मीटिंग व्हाट क्लोजर. देयर इज अनदर लेंस आई एम टेकिंग, तो दे आर, ये मतलब इन केस ऑफ दिस दे आर नॉट, दिस टू आर बोथ आर कन्वर्जिंग. दोनों क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, बट दिस वन इज कन्वर्जिंग मोर. This one is converging more. That means this one's power is what? More. This one's power is more. Clear? Now, the question comes converging. Convex lens do what? They converge the light rays. They converge the light rays. They converge the light rays. If they are converging the light rays, so how much converging? How much ability of converging? If the concave lens do what? Diverge. So how much diverging? इनका ability कितना है diverge? Two lens A and B. किसका एबिलिटी ज्यादा है, जिनका एबिलिटी, फॉर एग्जांपल इफ ए हैव मोर एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग, तो इज ए इज मोर पावरफुल देन व्हाट बी, एंड इफ बी हैव मोर डाइवर्जिंग एबिलिटी देन व्हाट ए, तो बी इज व्हाट मोर पावरफुल देन व्हाट, मोर पावरफुल देन व्हाट ए. क्लियर? तो डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स पावर. इट्स कॉल्ड इट पावर. नाउ हाउ वी कैन डिनोट this power of lens have a relation with the focal length. We have a focal length, and this power of lens we denote this what with the letter what P, and power of lens is the reciprocal of focal length. इनको क्या कौन सा relation है इन दोनों के बीच? Power of length is the reciprocal of is equal to the reciprocal of focal length का reciprocal का equal है. कौन क्या चीज equal है? Power. Clear? Power means what? Converging and the diverging ability, and power have a relation with the focal length. This power is equal to the reciprocal of focal length, and this power have a unit, and the unit is diopter. Unit is what? Diopter. Unit क्या है हम लोगों का? Diopter. Power like the unit of distance is meter. Unit of time is what? Second. Unit of mass is what? Kilogram. Similar unit of power is what? Our lens. Not power of physics वाला power, मतलब you are discussing power of what? Not this. This is the power of converging light rays, मतलब लेंस का पावर को हम लोग यूनिट इज व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, तो लेंस पावर यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग? डायप्टर बोलते हैं, एंड डिनोटेड बाय व्हाट? डी. सिंपल डी मींस व्हाट? फॉर एग्जांपल 2D, लेंस पावर इज 2D, तो इस दिस पावर ऑफ द लेंस इज व्हाट? 2D. पावर ऑफ द लेंस इज व्हाट? 2D. If the power of the lens, we can from power we can find out focal length, from focal length we can find out the power. For example, we'll discuss tomorrow about numerical. I don't want to go with the numerical today, बहुत लंबा हो जाएगा. तो what is the power unit of lens? Power of lens. So unit of power of lens. Unit of power of lens is diopter. We denote this diopter is what?
by D. Then they may ask define 1D. Define 1D क्या होता है? If they are define if a lens है power 1D तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है that the lens have then the focal length of the lens is 1 मीटर. उसी लेंथ का उसकी लेंस का फोकल लेंथ कितना है? 1 मीटर. जिस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है उसी लेंस को हम लोग क्या उसका पावर को क्या बोलते हैं? 1D पावर. 1D पावर. किसी एक लेंस का अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसके पावर को क्या बोलते हैं? 1 डायप्टर. 1 डायप्टर. And remember this point, for power as the power depends on what? Focal length. तो in case of concave, for the convex हमेशा पावर क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है. and the for concave lens हमेशा पावर क्या रहता है? नेगेटिव रहता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पावर डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ. तो फोकल फॉर द कॉन्वेक्स फोकल क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है. फॉर कॉन्केव फोकल लेंथ क्या रहता है? नेगेटिव रहता है. फॉर दैट रीजन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स पावर इज ऑल्सो पॉजिटिव. इन केस ऑफ कॉन्केव पावर इज ऑल्सो नेगेटिव. किसी भी लेंस का अगर फोकल लेंथ शॉर्ट है तो उसका एबिलिटी ज्यादा है. ओके, जस्ट टेक ए शॉर्ट नोट. क्लियर? अभी मतलब क्वेश्चन में कम लाइक पावर तो हम लोग समझ लिया. अगर दो लेंस को हम लोगों ने एक साथ बैठा दिया, फॉर एग्जांपल लेंस 1 इन द लेंस भी हम लोगों ने एक साथ बैठा दिया. इसका पावर है +5D और इसका पावर निकल गया फॉर एग्जांपल -2D. तो दिस वन है पावर ऑफ वन फर्स्ट लेंस, पावर ऑफ व्हाट? सेकंड लेंस. टोटल पावर कितना है? मतलब इफ यू आर कीप दिस व्हाट लेंस का मतलब 7 रख दिए तो उनका टोटल पावर ऑफ एकोमोड कितना हो जाएगा? पावर दिस इज नथिंग बट द व्हाट when you putting few lens पावर वाले लेंस को साथ जोड़ दिए तो टोटल पावर कितना होगा? टोटल पावर कितना? नथिंग बट द algebraic sum of the power of the different lens. तो अगर टोटल किया तो कितना हो जाएगा? 5 ± -2D. टोटल कितना हो जाएगा? 3 डायप्टर. और टोटल उसका लेंस का नेचर क्या हो जाएगा? प्लस. तो अल्टीमेटली कॉन्वेक्स नेचर रहेगा. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन में आस्क टू कैलकुलेट द if you are keeping for 2-3 lenses together तो total lens का पावर कितना हो जाएगा? This way nothing but the algebraic sum of the all different lenses. So in this lecture this is all about today's lecture. In this lecture we have discussed about image formation in concave lens, and also we have discussed about the sign convention for lenses. And do one thing for tomorrow's, if you want to attend the tomorrow's lecture then go through the sign convention because very very important sign conventions are. And we have discussed about power of lens. what is power of lens? and हम लोग अगर मतलब किसी पावर के लेंस को मतलब 2-3 पावर वाला दो तीन लेंस एक साथ रख दिए तो टोटल पावर कितना हो जाएगा? we have also find out. तो क्या हो जाएगा? कैसे निकलते हैं? सभी को हम लोग जोड़ देते हैं. ओके, फॉर इफ इट इज नेगेटिव तो प्लस माइनस कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोथ आर नेगेटिव तो मत फॉर एग्जांपल I can take 2 then I can get what P1 plus P2. तो -2 क्या मिल जाएगा हम लोग को? -4 मिल जाएगा. and don't forget to D. Okay, D is our diopter. So this is all about today's lecture. And if you want to attend the tomorrow's lecture, go through the sign convention, very very important. And share with your friends and tell others also that tell them also to join this channel. Okay, and share maximum. Okay, bye. Thank you. Hope you guys enjoyed the video. Bye bye.